हाँ, डायमेंशंस में we write the powers of 5 fundamental quantities: mass, length, time, electric current and temperature. तो कल हमने डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़े थे हमने. तो एक्चुअली स्पीकिंग, डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी represent that quantity in terms of the fundamental quantities, or from the dimensions we get an idea about how the given quantity depends on fundamental quantities. कौन कौन से fundamental quantities पर given physical quantity depend करता है, ये हमें पता चल जाता है. yes, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. Now next हमें जो पढ़ना है टॉपिक applications of dimensional analysis. Applications of dimensional analysis. What is the use of dimensional analysis in physics? Right, next topic. Application or uses of dimensional analysis. There are 3 applications of dimensional analysis. First, write these 3 applications, then we will discuss one by one in detail. First application है to check the correctness or truth of given physical equation. Write the applications of dimensional analysis. Then we will discuss one by one in detail. First application is to check the correctness or truth of given physical equation. इसका मतलब है, सपोज अगर हमें कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, then we can check whether it is true or not. With the help of dimensional analysis method, we can check whether the given physical equation is dimensionally correct or not. Suppose ये एक इक्वेशन आपका, you know this equation, कौन सा इक्वेशन है ये? Second law of motion. Kinematical equation number 2. Now we know that this equation is true, but suppose अगर कोई आपको अननोन इक्वेशन दिया है जिससे आपने पढ़ा नहीं है, ये इक्वेशन आपने पढ़ा नहीं है. फोर्स का एक इक्वेशन है, when the body revolve in a circle, the force acting on the body is given by F equal to mv square upon r, where m मतलब है mass, v मतलब velocity, r is the radius. Now we can check whether this equation is true or not. ये तो आपने पढ़ा है already. You know this equation is true. This is second kinematical equation. But if any other equation is given, if any physical equation is given, we can check whether it is dimensionally correct or not. तो ये एक इक्वेशन है फोर्स का. Force acting on the body revolving in a circle is given by mv square upon r, where m मतलब है mass, v मतलब velocity, r means radius. तो इसको हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या नहीं है. तो पहला एप्लीकेशन है, we can check whether the given physical equation is true or not with the help of dimensional analysis. Second, to convert given physical quantity
from one system of units to other with the help of dimensional analysis. We can convert given physical quantity from one system of units to other system. देखो हमने पढ़ा था there are different systems of units. SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है. तो सपोज अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है CGS सिस्टम में, तो उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम. यहाँ SI यूनिट में दिया हुआ है, इसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं हम. For example, we know that SI unit of work is joule and the CGS unit of work is erg. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हम डिराइव कर सकते हैं. ये रिलेशन है इन दोनों में. 1 जूल इक्वल टू होता है 10 to the power 7 erg, और इसको उल्टा लिख सकते हैं हम. 1 erg इक्वल टू आएगा 10 to the power -7 जूल. Joule and erg both are the units of the work, but joule is the SI unit and erg is the CGS unit. So we can convert the work from SI unit to CGS unit or from CGS unit to SI unit. तो ये सेकंड एप्लीकेशन है. हाउ वो हम समझेंगे हम डिटेल में. पहले आप लिख लो. फर्स्ट यू नोट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. देन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे हम डिटेल में विद एग्जांपल्स. लिख लिया सेकंड एप्लीकेशन. Yes. थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिराइव एग्जैक्ट रिलेशन between different physical quantities. To derive exact relation or formula between different physical quantities. So these are the three applications of dimensional analysis. Now let us discuss one by one in detail. Now let us see first application. Right again, फिर से लगाओ first application. To check the correctness of given physical equation. Now this application is based on principle of homogeneous dimensions. You can write it is based on principle of homogeneous dimensions. Now homogeneous का मतलब क्या होता है? Same. Now first application
इस पे हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनस डायमेंशंस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल any physical equation is correct. Only when dimensions of all the terms in that equation are same. First write this. कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है? तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनस डायमेंशंस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल any physical equation is correct or true only when dimensions of all the terms in that equation are same. Yes, लिख लिया? Yes, sir. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको कोई अननोन फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, तो सिंपली आपको क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन दैट इक्वेशन. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है, रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन दैट इक्वेशन. तो हर टर्म का डायमेंशन निकालना है, और अगर सारे टर्म्स के डायमेंशंस on left hand side and right hand side of the equation are same, so equation will be dimensionally correct. अगर सारे टर्म्स के डायमेंशंस सेम मिले तो इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली सही है. Now let us take an example. हो गया लिखना ये? Yes, sir. ओके, अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था देखो, write this example to check correctness of equation S equal to ut plus half a t square. Now can you tell me how many terms are there in this equation? इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? Two. दोनों साइड मिलाकर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देयर आर Four. 3 टर्म्स. रिमेंबर अगेन मैं बोल रहा हूं यहाँ पे वेरिएबल नहीं गिनने हैं. अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज गिनोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है. मैं बोल रहा हूं टर्म गिनने हैं. और मैथ्स में आपने पढ़ा है टर्म कब चेंज होता है? जब बीच में प्लस साइन या माइनस साइन हो. अगर आपको मैंने इक्वेशन दिया 5x + 2, तो ये कितने टर्म्स हुए? 2. 2 टर्म हुए ना. ये 5x और प्लस के बाद ये दूसरा टर्म. हाँ, अगर मैंने ऐसे लिखा 5, सॉरी ये ऐसे इक्वेशन में 2 टर्म्स है, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 5x5, तो एक ही टर्म है ना ये. बराबर. यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, तो ये 2 टर्म्स काउंट होंगे. बट यहाँ पे 5 × x × y है, तो ये पूरा एक ही टर्म है. यानी टर्म कब चेंज होगा? जब बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा. तो यहाँ पे 3 टर्म्स है. पहला लेफ्ट हैंड साइड में है s, दूसरा ये पूरा एक ही टर्म है u × t, और तीसरा ये पूरा एक ही टर्म है हाफ a t स्क्वायर. क्लियर? Yes. Remember, do not find the dimensions of all the quantities.
ये तो आप गलती क्या करते हो, सबके डायमेंशन लिखते हो, और सबके डायमेंशन सेम तो कभी आएंगे नहीं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कभी इक्वल थोड़े होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो इनके डायमेंशन तो सेम कभी आएंगे ही नहीं ना। हमें क्या चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस और u इंटू टी, ये पूरा एक टर्म है u इंटू टी, इसके डायमेंशंस, और तीसरा टर्म जो है हाफ ए टी स्क्वायर, अगर ये तीनों डायमेंशंस इक्वल आ गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो इसका मतलब इक्वेशन सही है। अब इसमें लॉजिक क्या यूज करते हैं हम, इसमें हम लॉजिक यूज करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ही पॉसिबल होता है, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। तो यहां पे अगर ut ये जो टर्म है, इसमें हमने ये वाला टर्म ऐड किया है और ये आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म सेम होंगे। जैसे आपको मैंने कहा 5 kg प्लस 2 kg कितना हुआ, 7 kg. 7 kg। तो ये मास है, ये भी मास है, तो मास में मास ऐड करोगे तो आंसर भी मास ही आएगा ना। अगर आपको मैंने बोला 5 kg और 2 मीटर कितना हुआ, yes, is it possible to add these two quantities? Not possible, क्योंकि एक मास है दूसरा लेंथ है, मास में लेंथ ऐड नहीं हो सकता है, मास में मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे अगर इसने ये ऐड किया हुआ है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, ओनली सिमिलर क्वांटिटीज का। तो अगर ये दोनों में एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, इसका मतलब ये डायमेंशनली सेम होने चाहिए। ये लॉजिक यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ बोलो सर, अगर हमने वो ऊपर ये फार्मूला में से 80 स्क्वायर के सामने से 1/2 हटा भी दिया, फिर भी वो तो डायमेंशनली इक्वली दिखाएगा ना। हाँ बराबर इक्वली दिखाएगा। तो ये हम आगे बढ़ेंगे, हर एक मेथड का एक ड्रॉबैक भी होता है ना, तो उसका एक ड्रॉबैक भी है। केवल हम इतना ही बता सकते हैं कि डायमेंशनली ये सही है या नहीं है, मैथमेटिकली सही है या नहीं है ये नहीं बता सकते हैं। आपको मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर, तो डायमेंशनली ये सही है, लेकिन हमें मालूम है मैथमेटिकली यहाँ पे हाफ भी होना चाहिए ना, बराबर। मतलब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1/2, किसी में 2 पाई होता है, किसी में 6 पाई होता है, किसी में समझो कोई और कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं भी दिया होगा तो भी आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसलिए हम प्रॉपर वर्ड क्या यूज कर दें, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली, हमें मालूम नहीं कि उसमें कोई कांस्टेंट मिसिंग है। यहाँ पे आपको मैंने 1/2 नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा कि इक्वेशन सही है, लेकिन वो डायमेंशनली सही है, मैथमेटिकली गलत है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि केवल हम इतना ही बता सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली सही होगा या नहीं होगा, मैथमेटिकली सही होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको मैंने 1/2 नहीं दिया तो भी आप कंक्लूड करोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली ट्रू, बट वी नो दैट इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग बिकॉज देयर शुड बी हाफ। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ द होमोजीनस डायमेंशन अप्लाई करना है आपको। मतलब जो भी फिजिकल इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले उसमें देखो टर्म्स कितने हैं, और टर्म कब चेंज होगा, जब बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आएगा। मतलब ये u इंटू टी, ये पूरा एक ही टर्म काउंट करना है, और प्लस के बाद ये पूरा एक ही टर्म है, और इस साइड में डिस्प्लेसमेंट जो है एक टर्म है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on both the sides of the equation. If they are same, then equation is dimensionally correct. क्योंकि मास में मास ऐड करोगे तो आंसर मास ही आएगा। तो 5 kg plus 2 kg equal to 7 kg आप लिखोगे, और 5 kg plus 2 मीटर ये पॉसिबल नहीं है ऐड करना, मास में लेंथ ऐड नहीं हो सकता है। मास में मास ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ
only similar quantities is possible. तो ये यहाँ पे लॉजिक यूज करते हैं. Now let us find. अब ये इक्वेशन तो पता है आपको कि ये सही है, लेकिन आपको समटाइम डेलिबरेटली रॉन्ग इक्वेशन दिया रहता है. आपको इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at दिया रहेगा. तो आपका आंसर क्या आएगा? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग. फिर इफ यू नो द करेक्शन, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो कि यहाँ पे टी स्क्वायर होना चाहिए था. अगर आपको इक्वेशन पता है तो उसमें करेक्शन करना है. ठीक है. नहीं तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले से करेक्शन कर देते हैं. पहले से करेक्शन नहीं करना है. जैसे आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया रहता है, तो कोई फॉल्स भी तो हो सकता है ना. तो यहां पर हमें चेक करना है कि इक्वेशन इज ट्रू और नॉट. तो मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू. और अगर आपका इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन रॉन्ग आ रहा है और आपको पता है उसमें करेक्शन कहां पर होना चाहिए, तो करेक्शन कर सकते हो. इफ यू नो द करेक्शन देन यू कैन करेक्ट इट. बट जनरली ऐसा दिया नहीं रहता है. आपको बस दिया रहता है वेरीफाई वेदर गिवन इक्वेशन इज ट्रू और नॉट डायमेंशनली. तो सपोज ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स. तो डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो. अब यहाँ पे आपको डायमेंशंस याद होने चाहिए, कल जो मैंने बताया था ना. तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो कल पढ़े थे हमने, उसके डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए. यस. डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होंगे? m0 l1 t1. m0 l1 t0. इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ. तो मास और टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा. तो m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू 0. फिर u मल्टीप्लाइड बाय t, इसके डायमेंशन निकालो. u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी. और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मतलब ये आएगा आपका L1 अपॉन T1 और मल्टीप्लाइड बाय T1. बराबर. इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये पूरा एक टर्म है. इसके पूरे डायमेंशंस निकालने हैं. तो u n a वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो L1 T1 आएगा, L1 अपॉन T1 और मल्टीप्लाइड बाय T1. तो T1 T1 कट हो जाएगा ये. तो फाइनली क्या आएगा? m0 l1 t0. ठीक है. देन नेक्स्ट आपका लिखना है डायमेंशंस ऑफ थर्ड टर्म हाफ a t स्क्वायर इक्वल टू आएगा डायमेंशंस ऑफ a इंटू टी स्क्वायर. 1/2 नहीं लेना, बिकॉज 1/2 इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट. इसको लिखेंगे हम नीचे. हाफ क्यों नहीं लिया हमने? बिकॉज हाफ इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ये क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, डायमेंशन लेस है. अब एक्सीलरेशन के डायमेंशंस बोलो. एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. L1 m0 t minus 2. L1 अपॉन t रेस टू माइनस 2. यहाँ L1 अपॉन टी स्क्वायर लिखो पहले, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर भी. बराबर. एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यहाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या है? L1 अपॉन T1 और अपॉन टाइम है तो और T1 मल्टीप्लाई होगा, तो L1 अपॉन टी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. तो फाइनली क्या आएगा? ये टी स्क्वायर कट हो जाएगा. तो वी गेट m0 l1 t0. ये सपोज इक्वेशन को हमने 1 नंबर दिया, ये वाला इक्वेशन को 2 नंबर और ये वाला इक्वेशन को 3 नंबर. Now from equation 1, 2 and 3 we can see that the dimensions of all the terms in the given equation are same. Since the dimensions of all the terms in the given equation are same, hence it is
डायमेंशनली ट्रू और करेक्ट। ऑलवेज राइट दिस वर्ड। हालांकि ये हमें पता है मैथमेटिकली भी सही है, बट अगर कोई अननोन इक्वेशन तो हम इतना ही बता सकते हैं कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं दिया होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा। समझ में आया मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहला एप्लीकेशन है, टू चेक वेदर गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। और मेथड आपको याद रखना है, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स in the given physical equation are same, the equation is dimensionally correct, otherwise wrong। अब समझो अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह पे टी दिया होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक टी कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा L1 और टी रेज़ टू -1। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के सेम है, थर्ड टर्म के डायमेंशंस डिफरेंट आ रहे हैं। तो नीचे कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, dimensions of all the terms in the given equation are not same, hence the given equation is dimensionally incorrect, and if we know the correction we can correct it। yes, समझ में आया? Yes, sir. अब ये हो गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरी में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक अननोन इक्वेशन दिया रहेगा और आपको वेरीफाई करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, करेक्ट और नॉट डायमेंशनली। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नीट में या सीईटी में ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन यहां पे इसी एप्लीकेशन को हम दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं, रिवर्स मेथड में। अब यहां पे देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना था, वेरीफाई क्या करना था, चेक करना था कि इक्वेशन सही है या नहीं है। और डायमेंशन हमें मालूम है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए हुए सबके डायमेंशन हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम। ठीक है, तो नोइंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स वी कैन वेरीफाई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब रिवर्स मेथड अप्लाई करो, आपको एक फिजिकल इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब आपको एज्यूम करना है कि वो इक्वेशन सही है। एक गिवन इक्वेशन इज गिवन, फिजिकल इक्वेशन इज गिवन, और उसमें कोई अननोन वैल्यू के डायमेंशंस आपको पूछे रहेंगे, तो वहां पे यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन में मैंने से u को मिटा के x लिख दिया, ये इक्वेशन आपका, मैंने आपको ऐसे दिया, ये इक्वेशन है आपका, और आप पूछा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द x, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एज्यूम करना है ये इक्वेशन सही है, और इक्वेशन तभी सही होता है जब सारे टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होते हैं। तो आपको डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायमेंशंस ऑफ x इंटू टी, इन दोनों को इक्वेट करना है। फिर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन हमें मालूम है, टाइम इंटरवल के मालूम है, तो x के हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? नहीं सर। रिवर्स मेथड अप्लाई करना है। पहले हमने क्या चेक किया, इक्वेशन दिया था और हमें पूछा था वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो हमने सारे टर्म्स के डायमेंशंस निकाले, और अगर सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम मिले तो इसका मतलब इक्वेशन सही है, और अगर दो टर्म्स के सेम है, थर्ड टर्म के डिफरेंट है, या तीनों के डिफरेंट है, तो इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। अगर अलग अलग टर्म के डायमेंशंस अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट।
क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका हो सकता है? सिमिलर क्वांटिटीज का। ठीक है, तो जैसे ये इक्वेशन आपको दिया था, तो इसको हमने चेक किया। कैसे चेक किया? पहले ये वाले टर्म के डायमेंशन निकाले एस के, फिर u इंटू टी के निकाले, और फिर हाफ ए टी स्क्वायर के, और तीनों टर्म के डायमेंशन सेम मिले, तो हमने कंक्लूजन लिखा इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन आपको नीट में या सीईटी में क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, एनी करेक्ट और ट्रू फिजिकल इक्वेशन इज गिवन, मतलब फॉर्मूला दिया रहेगा आपको कोई भी फिजिक्स का, और उसमें कोई अननोन वेरिएबल का डायमेंशन पूछा रहेगा, तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है? ये लॉजिक यूज करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज का ही हो सकता है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको u मिटा के x दे दिया, तो आपको पता है कि अगर इक्वेशन सही है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों के डायमेंशंस इक्वेट करेंगे हम। तो x के डायमेंशंस क्या होंगे? जैसा मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते वैसे लिखना है, डायमेंशंस ऑफ s अपॉन डायमेंशंस ऑफ t इक्वल हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ x। ये t इधर ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इसके डायमेंशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट के टाइम के मालूम है, तो आपको x के डायमेंशंस मिल जाएंगे। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल बताया, लेकिन हम दूसरे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया? Yes, sir. और Yes, sir. ऑब्जेक्टिव नीट में और सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको ऐसे पूछा नहीं रहेगा कि इक्वेशन सही है या नहीं है चेक करो। ये थ्योरी में आता है, थ्योरी में बोर्ड एग्जाम के लिए वैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? इक्वेशन दिया रहेगा, कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दिया रहेगा, और उसमें कोई अननोन वैल्यू रहेगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, उसके डायमेंशंस आपको पूछे रहेंगे। राइट, उसका एग्जांपल लिखो। हाँ, एस अपॉन टी अगर करेंगे तो टी टी कट हो जाएगा, तो L1 आ जाएगा ना, पर S upon- x अपनी वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, पहली बात तो एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके साथ कट होगा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है लेंथ L1 और टाइम का है T1, कट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मिला ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आप लिखोगे L रेस टू 1 और T का T रेस टू 1, तो X का डायमेंशन क्या मिलेगा आपको? L रेस टू 1 T रेस टू -1, बराबर है ना, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है। तो ठीक है, Yes, sir. ओके। अब सपोज आपने ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एग्जांपल लिखो आपका, ये आपका सीईटी और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में इस लेवल का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू bodies of masses m1 and m2 separated by distance r is given by F equal to capital G m1 m2 upon r square। लिख लिया क्वेश्चन?
एक आपका क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे, हम 11th में आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, 10th में भी पढ़ा आपने ऑलरेडी ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये। सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट लिए जिनका मास दिया हुआ है m1 m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। अब इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें कैपिटल G का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस पे हमें कैपिटल G के डायमेंशंस बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, अरे क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक फॉर्मूला है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपको रिवर्स मेथड अप्लाई करना है। इक्वेशन सही है, जो इक्वेशन आपको दिया है एज्यूम करना है कि वो इक्वेशन सही है। इसका मतलब उस इक्वेशन में दोनों साइड में सभी टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला टर्म है LHS का F यानी फोर्स, और राइट हैंड साइड का पूरा ये एक ही टर्म है हेड ऑन। सिंस डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू आएगा डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा एक ही टर्म है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे G मल्टीप्लाइड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 अपॉन r स्क्वायर है। तो ये पूरा एक ही टर्म काउंट करना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है फोर्स। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू, ये एज्यूम करना है आपको। इक्वेशन दिया हुआ है मतलब वो सही है, तो उसके दोनों टर्म्स LHS टर्म और RHS टर्म के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करो। अब इसमें फोर्स के डायमेंशंस हमें मालूम है, मास के मालूम है, डिस्टेंस के मालूम है, तो इनके वैल्यू पुटअप करके आपको G के वैल्यू मिल जाएगा। राइट ऑन। इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ F इक्वल टू, अब G निकालना है तो G को अलग कर दो, डायमेंशंस ऑफ G मल्टीप्लाइड बाय m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देयरफॉर अब जैसे आप फिजिक्स में या मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है, ये अननोन है। तो डायमेंशंस ऑफ G इक्वल टू क्या आएगा, r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ F इंटू डायमेंशंस ऑफ r स्क्वायर, और m1 m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ m1 टू डायमेंशंस ऑफ m2। समझ में आया? We have to find the dimensions of gravitational constant कैपिटल G। तो कैपिटल G अननोन है, इसको एक साइड में रखेंगे हम, और बाकी सब दूसरे साइड में लेंगे। तो r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इंटू r स्क्वायर, और m1 m2 डिनोमिनेटर में आ गया। अब सबके डायमेंशंस लिखो, बोलो फोर्स के डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t minus 2। m1 l1 t minus 2 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। नाउ r इज अ डिस्टेंस, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस r, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मतलब ये लेंथ ही एक तरह का। तो r का स्क्वायर है, ये आएगा l स्क्वायर, बराबर। अपॉन ये m1 मास है, m2 भी मास है, तो ये आएगा m1 इंटू m1। सिंप्लीफाई दिस, क्या आएगा,
डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, एक m1 m1 कट कर दो, ये m1 और ये m1 कट कर दो डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर ले लेंगे m1, तो m रेस टू क्या आएगा -1, बराबर। एक m1 m1 कट हो गया, और ये m1 ऊपर ले लिया, m रेस टू -1 हो गया। l कितना आएगा पावर, l का पावर 2. ये 1 + 2 3 हो जाएगा ना, 2 कैसे आएगा, ये 1 है मल्टीप्लाइड बाई ये, l का पावर 2 है, तो पावर का एडिशन होता है 1 + 2, 3 हो जाएगा पावर। लॉ ऑफ इंडायरेक्ट अप्लाई करना है, l रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाई l रेस टू 2, तो l रेस टू क्या आएगा 1 + 2 दैट इज 3, और t का पावर -2. -2। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक फिजिकल इक्वेशन दिया रहेगा, तो वो सही इक्वेशन एज्यूम करना है, और उसमें जो अननोन वैल्यू रहेगा उसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन कि एक वेरिएबल आपको निकालना है x या y, तो बाकी सबके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। तो फोर्स के मालूम है, मास इनके तो, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फाइनल डायमेंशंस क्या मिले, m रेस टू -1, l रेस टू 3, t रेस टू -2, ठीक है। यस सर। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। और एक लिखो एग्जांपल, जो आपका जी मेंस पे आ चुका है, पहले नीट में आ चुका है प्रॉब्लम, राइट। इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, equation of real gases is given by P plus A upon V square multiplied by V minus B equal to R into T, where अब ये इक्वेशन आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें आपको सिंबल का मीनिंग दिया रहेगा। P मतलब यहाँ पे प्रेशर है, V मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, P मतलब प्रेशर ऑफ गैस, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, T का मतलब है टेम्परेचर, यहाँ पे T मतलब टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं हम, और R एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मोलर गैस कांस्टेंट। अब इक्वेशन क्या है, कैसे है, वो हम आगे समझेंगे। एट प्रेजेंट आपको समझो एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हमें, जिसका डेरिवेशन नहीं मालूम, बस इतना है कि एक गैस का इक्वेशन है, यानी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बीच में एक रिलेशन है, P plus A upon V square multiplied by V minus B equal to RT, फिर P का मतलब है प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, और R एक कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये A और B के डायमेंशंस निकालने हमें। लिख लिया क्वेश्चन?
अरे क्वेश्चन हो गया लिखना? Yes, sir. Yes, sir. यस, कोई बता सकता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हम डायमेंशंस ऑफ ए एंड डायमेंशंस ऑफ बी? बोलो। सर a बाय v स्क्वायर के डायमेंशंस और p के डायमेंशंस इक्वल होंगे ना? वेरी गुड। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर और a अपॉन वी स्क्वायर ये दोनों ऐड किए हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तभी तो ये ऐड हो रहा है ना इस इक्वेशन में। मतलब आपको क्या यूज करना है, डायमेंशंस ऑफ p विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। फिर आपको प्रेशर के डायमेंशंस मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम के पता है, तो ये दोनों का पुटअप करो, आपको a का मिल जाएगा। समझ में आया? Yes, Yes, sir. केवल हमने कंसेप्ट क्या यूज किया, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट ऑन। डायमेंशंस ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। ये पूरा टर्म लेना है, ओनली a नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा टर्म p में ऐड हो रहा है। तो ये दोनों ऐड तभी हो सकते हैं जब ये डायमेंशनली सेम होंगे, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब इसको फर्दर लिखेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ p, या a इधर ही रहने दो एक साइड में, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर। ये v इधर ले लिया, या ऐसे लिखो आप, डायमेंशंस ऑफ v उसका स्क्वायर। यस, प्रेशर के डायमेंशंस बोलो। M1, हमने प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ m1, L minus 1, l माइनस 1, T minus 2. t माइनस 2। वेरी गुड, ये आपको याद रखने हैं। इसलिए कल मैंने आपको बोला था जितने डायमेंशंस कल पढ़े थे हमने वो सब याद होने चाहिए कम से कम, तभी ये एप्लीकेशन आप समझ सकते हो इजीली। नहीं तो आप प्रेशर के डायमेंशन फिर निकालने बैठोगे फोर्स अपॉन एरिया से, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या आएगा, m raised to 0, l raised to 3, t raised to 0. m0 t0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, l रेस टू 3, हाँ। फिर उसका स्क्वायर करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी l रेस टू 3 और उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। अब इसके सबको कंबाइन करो, तो m रेस टू क्या आएगा 1, l रेस टू -1, t रेस टू -2 और ये आएगा l रेस टू 6। पावर का पावर, तो पावर मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़ा है ना लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो 3 2 6 हो जाएगा, l रेस टू 6। यस, फाइनल डायमेंशंस क्या होंगे, M1, m रेस टू 1, L l रेस टू 5, l रेस टू 5, -1 और +6 तो 5 हो जाएगा, और t रेस टू minus 2. -2। ये हो गया आपका डायमेंशंस ऑफ a, एक आंसर हो गया। समटाइम केवल a का पूछा रहता है, समटाइम केवल b का पूछा रहेगा, यहाँ मैंने दोनों दे दिए। अब b का कैसे निकालेंगे, वेरी इजी, बोलो। वॉल्यूम में से b माइनस किया है, इसका मतलब क्या हुआ, same dimensions. वॉल्यूम और b के डायमेंशन सेम होंगे, तभी दोनों का डिफरेंस लिया हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का ही होता है। आपको बोला मैंने 5 kg मास -2 kg मास, तो आंसर लिखोगे आप 3 kg मास। मास में से मास ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू आएगा डायमेंशंस ऑफ v, और v के डायमेंशन तो इजी है, m0 l रेस टू 3
और t रेस टू 0। हो गया आंसर आपका। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो ये क्वेश्चन आपका पहले नीट में, सीईटी में कई बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इक्वेशन कैसा है, क्या है, अभी मतलब मालूम नहीं है, केवल आपको इतना दिया कि एक कोई गैस का इक्वेशन है जिसमें P मतलब प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम है, T मतलब टेम्परेचर, और A और B का डायमेंशन बताना है। एक क्वेश्चन लिखो आप होमवर्क के लिए, आप घर पे सॉल्व कर लेना। अच्छा, समटाइम ऐसे भी आता है आपको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B। तो क्या करोगे आप? समटाइम आपको ऐसे दिया रहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो ये A का डायमेंशन निकाला, B का निकाला। अगर ऐसे आया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B, तो आपको क्या करना पड़ेगा? A के डायमेंशंस मतलब m1 L⁵ T⁻², और B के डायमेंशंस अपॉन में L3, इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका m1 L2 T⁻²। ठीक है? Yes, sir. Yes. कभी कभी ऐसे भी आता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। A इंटू बी मतलब A और B के डायमेंशन मल्टीप्लाई करने। तो A का निकालना है, B का निकालना है, फिर दोनों मल्टीप्लाई करने। समटाइम रेशियो का पूछा रहता है, तो जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे आंसर लिखना है आपको। ओके, राइट। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है आपका होमवर्क के लिए, घर पे आप सॉल्व कर लेना। द वेलोसिटी V, the velocity V of a particle the velocity V of a particle at time t is given by V equal to AT plus B upon T plus C। AT plus B upon T plus C। Find the dimensions of A, B and C। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. आएगा सॉल्व करने? Yes, sir. यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है। पहला टर्म है V LHS में, दूसरा टर्म A मल्टीप्लाइड बाय T, और ये पूरा एक टर्म। ऐसे तीन टर्म्स है, 1, 2 और ये 3। तो ये इक्वेशन अगर सही दिया हुआ है तो इसका मतलब सबके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों के इक्वेट करोगे आप V और AT के, तो आपको A का मिल जाएगा, और इन दोनों के इक्वेट करोगे तो B का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना है। कल हम आंसर वेरीफाई करेंगे हम, और आगे सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप करें, हम कल कंटिन्यू करेंगे हम।